today's class, we will learn about the isomerism in coordination compounds. As we know, isomerism is what? It is a phenomenon which arises in the compounds which have the same chemical formula, but they have the different structures. As we earlier know, but there is some change in the definition. We can say that the compounds having same chemical formula, but they have the different arrangement of atoms in coordination compounds are said to be isomers, and this phenomenon is known as the isomerism. In coordination compound, isomerism is of basically two types. One is the stereoisomerism and other one is the structural isomerism. Let us study one by one about these. Stereoisomerism means that the compound having same chemical formula, but they have the different spatial arrangement in 3D space. These type of isomerism is known as the stereoisomerism, and the other type of isomerism is the structural isomerism, in which the compound have the same chemical formula. The compounds have the same chemical formula, but they have the different structure. Stereoisomerism can further be divided into two types. One is the geometrical isomerism. And other one is the optical isomerism. Similarly, structural isomerism have the different bonds position, which can be further divided into four categories. These four categories are linkage isomerism, coordination isomerism, ionization isomerism, and solvate isomerism. In the first session, we will learn about we will study more about the stereoisomerism. In the stereoisomerism, as the compounds of coordination compounds generally have the two type of coordination numbers in our syllabus, that are the वैसे तो बहुत तरह से होता है, लेकिन फिर भी मेन जो कौन सी है हमारी the compounds having the coordination number 4 और the coordination number 6. ठीक है ना. तो इन दोनों के केसेस में किस तरह इन आइसोमेरिज्म को हम समझ सकते हैं वो हम लोग देखते हैं. ठीक ना. तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कहा जाए तो कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन है, उसमें जो लिगेंड्स है वो लिगेंड्स होने चाहिए हमारे हेटेरोलिप्टिक. वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ligands there. On the basis of ligands, compounds can be divided into two categories. That one is the homoleptic and second one is the heteroleptic. तो heteroleptic का मतलब क्या होगा कि different टाइप के ligands होंगे. तो ये पहली कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए. अगर सेम टाइप के ligands लगे हुए हैं तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पॉसिबल नहीं हो सकता है ना. यहाँ पर जो भी बात हम लोग कर रहे होंगे आइसोमेरिज्म में, वो आइसोमेरिज्म में हम लोग बात कर रहे होंगे स्पेशल अरेंजमेंट को लेकर के, जो हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटी है उसके अंदर, यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी जाने वाली एंटिटी है उसके अंदर. तो यहाँ पर हम लोग जो सेंट्रल मेटल आयन है उसको M से रिप्रेजेंट करेंगे. जो लिगेंड्स है उनको हम A, B या X कोई भी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक ना. If I am talking about the MX4 or MA4, it means that there are four ligands which are similar to one another. That's why I am writing as the MX4. If I write the MX6, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 6 है, और इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होंगे. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहली बात. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके के पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं. वी नो कौन सा, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है और साथ में कौन हो सकता है, टेट्राहेड्रल. तो जो कोऑर्डिनेशन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये केवल स्क्वायर प्लेनर में पाया जाएगा. हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल के केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहां पर चारों पोजीशन लगभग एक ही एंगल पर होती हैं, सिमिलर एंगल पर होती हैं. तो अगर हम 3D स्पेस में देखते हैं तो चारों तरफ से मॉलिक्यूल हमारा एक ही जैसा दिखाई देता है. जैसे अगर मैं सेंट्रल एटम को सेंटर पे बनाती हूँ तो यहाँ पे जो 4 लिगेंड लगेंगे
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में वो एक ही पोजीशन पर दिखाई देंगे, हम उनकी हमें पोजीशन 3D स्पेस में चेंज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो उनका एंगल है 3D स्पेस में वो क्या होगा 107.9 डिग्रीज का होगा। तो टेट्राहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें नहीं देखने को मिलता है, स्क्वायर प्लेनर के केस में मिलता है, ऑक्टाहेड्रल के केस में मिलता है। अब आगे तो देखते हैं हम लोग, स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कंपाउंड की बात करें तो MX2L2 टाइप, इसका मतलब X और L क्या है, यहाँ पर यूनिडेंटेट लिगेंड है। अगर बाइडेंटेट लिगेंड होता तो बाइडेंटेट के लिए दो शेयरिंग साइड, दो डोनर साइड्स होती हैं, इसलिए उसको केवल एक ही सिंबल मिलता है। यहाँ पर दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दो लिगेंड लगे हुए हैं। अब उनको दो लिगेंड्स लगे हुए हैं, एल के दो हो चाहे एक्स के दो हो, उनको हम दो पोजीशंस पर लगा सकते हैं। अगर हम उन्हें एडजेसेंट पोजीशंस पर लगाते हैं तो हम कहते हैं उस तरह के आइसोमर को सिस, और अगर हम अपोजिट पोजीशंस पर लगा देते हैं तो हम उसी आइसोमर को कहने लगते हैं ट्रांस। तो इन केस ऑफ this type of complex we have two arrangements, that is one is the cis and other one is the trans. Let us study more about that. We are taking the two example for the coordination compound, coordination number 4 compound, that is the, इसका नाम अगर हम रखें तो नाम क्या हम रखेंगे, यहाँ पर दो एमाइन है, इसका मतलब डाई एमाइन हो जाएगा, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोराइडो कहा जाएगा। अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं तो हम कहते हैं डाई एमाइन डाई क्लोराइडो प्लैटिनम। प्लैटिनम यहाँ पर कोई भी प्लैटिनम के ऊपर चार्ज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लैटिनम के ऊपर यहाँ पर चार्ज आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ एमाइन के ऊपर चार्ज कितना है 0 है ना। एक बार फिर से देखो, यहाँ एमाइन के ऊपर चार्ज कितना है 0, लेकिन क्लोरीन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर रहा होगा। यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज जो भी रहा होगा तो उसके कारण इसमें चार्ज कितना हो जाएगा, 2 क्लोरीन के ऊपर -2। अगर इसके ऊपर कोई चार्ज आएगा तो चार्ज अगर नहीं आ रहा है, तो अगर यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर +2। सो हाउ विल राइट द नेम, विल राइट एज द डाईएमाइन डाइक्लोराइडो platinum 2, है ना, platinum 2, because it is a neutral complex, neutral type of entity, that's why we'll write the name of metal as it is in case of this. So this is right as the platinum. So ये पोजीशंस क्या कहलाएंगी, ये पोजीशंस कहलाएंगी सिस। और अगर हमने एक दूसरे के अपोजिट लगा दिए सेम लिगेंड्स तो इसी को हम क्या कहने लगते हैं, ट्रांस। सो इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म we have this adjacent positions of the ligand will be termed as this is, and trans क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। ऐसे ही हम कहें अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में देखते हैं तो अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में भी क्या हो जाएगा, ये पोजीशन कहलाएंगी सिस और ये पोजीशन कहलाएंगी ट्रांस। अब एक बात का ध्यान देना, अगर हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकली तो हम कैसे दिखाते हैं, सेंट्रल मेटल को M से दिखाते हैं। ये हमारी 4 पोजीशन होती हैं, 4 लिगेंड लगे हुए होते हैं। अब मैं इन 4 लिगेंड्स को अगर नंबर दूं तो 1 2 3 4। सिमिलरली अगर हम इसे एक प्लेन पर मानते हैं, ये एक प्लेन है, तो इस प्लेन में जो हम दो पोजीशंस और बनाएंगे वो हम कहेंगे, एक प्लेन के ऊपर है तो एक प्लेन के नीचे है, तो एक प्लेन के ऊपर वाली को हम यहाँ पर टर्म दे देंगे, नंबर दे देंगे 5, और इसे हम कहेंगे 6 जो प्लेन के नीचे हम बनाते हैं। तो जैसे हमने प्लेन के नीचे इसको 6 को बनाया तो अब पोजीशंस हमारी क्लियर हैं बिल्कुल, कौन सी सिस कहलाएंगी कौन सी ट्रांस कहलाएंगी। इसके लिए अगर आप देखते हो तो पोजीशन 1 2 6 है, 2 3 सिस है, 3 4 भी सिस है और 4 1 भी सिस। बच्चों यहाँ पर 5 और 2 भी सिस है और 5 और 1 भी सिस है, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन आनी है, ये सारी सब 90 डिग्रीज पर है एक दूसरे से। ऐसे ही ये पोजीशन देखेंगे तो 4 और 5 भी सिस है और 5 और 3 भी सिस है, क्योंकि प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे की बात हो रही है। ऐसे ही 6 3 और 6 4 भी एक दूसरे के सिस कहलाएंगे। सो इन केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पोजीशंस को देखकर बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। हम सिस और ट्रांस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स isomerism, that is the geometrical isomerism in case of octahedral and square planar complexes.
ध्यान देना, यहाँ पर कई तरीके के कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं जिसमें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, जैसे कि टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जिनमें की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है लेकिन, और टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो गया टेट्राहेड्रल, इसमें नहीं पाया जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिमिलरली स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो Ma4, लेट मी राइट दिस, इफ आई से दैट कॉम्प्लेक्स टाइप इज Ma4, Ma4 टाइप का कॉम्प्लेक्स ले लें जहां पर एक किसी को किसको दिखा रहा है, किसी भी लिगेंड को दिखा रहा है, Ma3b, है ना, तीन लिगेंड एक जैसे हैं और दूसरा लिगेंड कैसा है, डिफरेंट है ना, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसी तरह हम कहें MAB3 टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता है, MAB3 टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता है तो भी उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाएगा। और एक बात और साथ में अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये किसकी बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में Ma6 टाइप का कंपाउंड अगर हो जाता है तो उसमें नहीं होगा। इसी तरह Ma5 और B टाइप का कॉम्प्लेक्स अगर हो जाता है तो उसमें भी कोऑर्डिनेट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लिगेंड्स के नंबर को देखकर और उनके टाइप को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा और कहाँ पर नहीं करेगा। क्लियर है? तो इन दिस वे वी कैन by looking at the formula, by looking at the complex entity, we can decide that the geometrical isomerism is existing or not. Let us go further. We study more about this. अगर हमारे को कोई कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका कि एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मेरे पास अगर आता है, मैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले की बात करूं तो जैसे एक कोई कॉम्प्लेक्स मेरे पास आया MABCD, है ना, MABCD, अगर MABCD टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स आता है तो MABCD टाइप के कॉम्प्लेक्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, है ना। उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, उसको जानने के लिए हम किसी एक लिगेंड की पोजीशन को स्टेबल कर देंगे और हम बाकी लिगेंड्स की पोजीशन को चेंज करते चले जाएंगे, तो उसके तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें मिलेंगे, है ना। उसके उसके जो तीन आइसोमर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे जो अगर हमारे पास चार डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स एग्जिस्ट